Good morning to all of you. How are you guys? And I hope you are enjoying the science lessons that are going on through the video series lecture that we have started in Avigyan, so that you will not lose any part of your studies, right? So therefore, keep watching and keep discovering new avenues of science. So in my last class, I had discussed circular system. Today also we will continue that circular system. And today, in today's class, we will be going to discuss about blood. किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड माने खून, right? So what is a blood? We are not talking about a blood that you're watching in Hindi movies and saying खून मेरा खून मैं तेरा खून कर दूंगा. It's not like that. So today we will be looking blood from the perspective of biology. So what is a blood? Blood is nothing but a fluid connective tissue. You remember when we were teaching, when we were doing tissues, under that I taught you that blood is also a connective tissue. Okay? Now, पहला सवाल, how much blood is there in our body? It is approximately to 5 to 6 liters. 5 to 6 liters of blood is there in human body, right? And what is the most important function of the blood? What is the most important function? It is a medium of transport. It is a medium of transport. It is a medium of transport, right? Now, what are the main components of blood? What are its main components? What are its main components? Okay, the main components of blood basically consist of two parts. One is called plasma, and second is ब्लड सेल्स. और दूसरा हिस्सा क्या होता है? ब्लड सेल्स का होता है. ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी होती है ब्लड की? 5 to 6 लीटर्स. ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट. ब्लड में का मेन कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर मेनली क्या होता है? प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है? आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ वी गो फर्दर. हमने आपको क्या बताया? ब्लड का दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट क्या होता है? प्लाज्मा, राइट. सेकंड कंपोनेंट क्या होता है ब्लड का? ब्लड सेल्स. सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? ब्लड सेल्स. प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में? लिखो 55%. कितना परसेंट होता है? 55%. और रिमेनिंग 45% क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, तो नाउ अब हम देखेंगे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनका क्या कॉम्पोजिशन है, इनका क्या फंक्शन है और ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं. नाउ वी विल लुक इनटू दैट. ओके, तो सबसे पहले वी विल लुक प्लाज्मा. पॉइंट नंबर 1, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पोर्शन. क्या होता है? फ्लूइड पोर्शन. फ्लूइड पोर्शन माने तरल. प्लाज्मा के अंदर होता क्या? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ वाटर. पॉइंट नंबर 2, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ वाटर. पॉइंट नंबर 3, ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. इसको अंडरलाइन करो. ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, excretory waste, all the nutrients,
हार्मोन्स, excretory waste, just a moment, wait a minute, all important nutrients, hormones, excretory waste and everything कौन किसके अंदर होती है? प्लाज्मा के अंदर होती है, and it is transported through, all these things are transported through किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. लिखो, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, फोर्थ पॉइंट, जो आरबीसीज होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. ये किस में होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं. फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, if I remove clotting protein from the plasma, it becomes, can you guess what it becomes? तुमने ये वर्ड जरूर सुना होगा, बहुत बार सुना होगा. It becomes serum, SERUM, serum. लिखो फटाफट, नोट डाउन these points. I'll tell you. Blood constitutes of two main components, plasma and blood cells. तो पहले हमने क्या समझा? प्लाज्मा क्या होता है? Plasma constitutes 55% in the blood. It is a fluid portion. It mainly consists of water. All the important nutrients, all the important nutrients, hormones, excretory waste, clotting proteins, all are transported in our body through the plasma. Okay? And red blood cells as well as white blood cells are also transported and present in the plasma. This is the fourth point. And fifth point, if I remove clotting protein from the blood, it becomes serum. अगर मैं प्लाज्मा में से, I write it down here, if I remove clotting protein from the plasma, it will become serum. ये क्या बन जाता है? सीरम. इसको अंडरलाइन करो, राइट इट डाउन. If we remove clotting protein from the plasma, it becomes serum. ये क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है. डन? ओके. नाउ ये तुमने क्या पढ़ा? ये तुमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में. ये प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड सेल्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड सेल्स. Now we will discuss about blood cells. अच्छा, एक बात लिखो, blood cells also floats in plasma. ये भी किस में फ्लोट करते हैं? प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं. Blood cells basically are two types, red blood cells and white blood cells. कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स. और तीसरा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स. ये वर्ड सुना है ना तुमने? ब्लड प्लेटलेट्स. तीसरा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स होता है. ठीक है, तीसरा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स. तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं. व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स. ओके, तो व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स? इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड मूवमेंट. रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, जस्ट अ मिनट, रेड ब्लड cells also known as
एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज एरिथ्रोसाइट्स। डन। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, तुम्हें याद होगा रेड ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन, बताओगे? इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। इसमें प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। अंडरलाइन करो इसको, अंडरलाइन करो। इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड इट हैज नो न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है। इट हैज नो न्यूक्लियाई, लिखो, इट हैज नो न्यूक्लियाई and its cytoplasm filled with hemoglobin, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद रखना कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। देन राइट पॉइंट नंबर 14। हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैं कहाँ लिखूँ? आई विल राइट इट डाउन हेयर। ये प्लाज्मा कर लिया ना हमने, वी हैव डिस्कस्ड इट, तो आई विल राइट इट डाउन हेयर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन के बारे में जानो। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंटेड प्रोटीन, लिखो, इट इज अ रेड पिगमेंटेड प्रोटीन। अगर ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में कि व्हाट हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन अगर तुम्हें 4 ऑप्शन दिए तो उसमें तुम किस पे टिक करोगे? तुम बताओगे हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंटेड प्रोटीन। ओके, अंडरलाइन करो उसको, इज अ रेड पिगमेंटेड प्रोटीन विच बाइंड्स loosely with oxygen and carbon dioxide। ये किसके साथ लूजली बाइंड हो जाता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देर इज वन मोर सब्सटेंस विच इट कैन लूजली बाइंड एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ आल्सो, दैट वी कैन डाई। वो कौन सा सब्सटेंस है? ये लिखो, इट आल्सो बाइंड्स विद कार्बन मोनोक्साइड। इट आल्सो बाइंड्स विद कार्बन मोनोक्साइड। किसके साथ बाइंड हो जाता है? कार्बन मोनोक्साइड के बाद विच लीड्स टू कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। और क्या हो सकती है हमारे को? कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। इसको अंडरलाइन करो, लिखो, विच कैन लीड टू कार्बन मोनोक्साइड। तो हीमोग्लोबिन क्या हुआ? रेड पिगमेंटेड प्रोटीन। It binds loosely with oxygen and carbon dioxide. It also binds with carbon monoxide, which leads to carbon monoxide poisoning, which led to the death in human beings. Okay, done. अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया एक, उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दे सर्कुलेट, लिखो, दे सर्कुलेट in our body for 120 days। हमारी बॉडी में कितने दिन तक सर्कुलेट करते हैं ये? 120 दिन तक करते हैं। आफ्टर दैट एंड आफ्टर 120 days it gets destroyed in स्प्लीन। इसमें डिस्ट्रॉय कर, कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये? स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है?
आई विल टेल यू अबाउट स्प्लीन इन फर्दर, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो स्प्लीन के बारे में आपको बताएंगे। स्प्लीन कहाँ होता है? इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ बहुत छोटा सा बॉडी पार्ट होता है स्टमक के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ठीक है, राइट, ओके, राइट। और ये हो गया। और व्हाट आई कैन कवर रेड ब्लड सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन। ये नोट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको लिखिए। आरबीसी डिस्ट्रॉयड, लिखो, आरबीसी डिस्ट्रॉयड, then its iron component, when red blood cells are destroyed, then its iron component is preserved, its iron component is preserved for reuse. किसके लिए? It is preserved for reuse in liver. जब आरबीसीज ख़त्म हो जाते हैं और इनका जो आयरन कंपोनेंट होता है उसको हमारी बॉडी क्या करती है? प्रिजर्व कर लेती है दोबारा से रीयूज़ करने के लिए। और ये एक्टिविटी कहाँ होती है? लीवर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड द रिमाइंडर ऑफ जो बाकी थोड़े बहुत हीमोग्लोबिन बचे होते हैं इसके बाद भी, दैट रिमाइंडर हीमोग्लोबिन, that remainder hemoglobin converts to bilirubin. जो रिमाइंडर हीमोग्लोबिन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स टू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, एक और लाइन लिख लो उसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई राइट इट डाउन हियर। जो रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज देयर इन आरबीसी? आरबीसी हैज इम्यून स्टिमुलेटिंग, इट हैज इम्यून स्टिमुलेटिंग पॉलीसैकेराइड, just a minute, just a minute. It is immune, in RBC it has a immune stimulating polysaccharides, immune stimulating polysaccharides, जिसको हम क्या बोलते हैं? called as, इसको अंडरलाइन करो, as antigens। क्या बोलते हैं इसको? एंटीजेंस। इम्यून स्टिमुलेटिंग पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड एंटीजेंस। ओके, क्या बोलते हैं इसको? हम एंटीजेंस बोलते हैं, राइट भाई। और ये कहाँ पर होते हैं? इट इज अटैच्ड ऑन द सरफेस, इट इज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये कहाँ पे अटैच्ड होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, और हमारा जो ब्लड टाइप होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो ब्लड टाइप होता है कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है वो इसी एंटीजन पे बेस्ड करता है। अगर किसी इंडिविजुअल का ए एंटीजन है, इफ सम इंडिविजुअल हैज ए एंटीजन, तो उसका ब्लड टाइप क्या होगा? बताओ जल्दी से। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका? ए ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो किसी बंदे का एंटीजन क्या है? बी है, किसी इंडिविजुअल का बी एंटीजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप को बी ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी ग्रुप है। अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का ए एंड बी एंटीजन है, तो उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ए बी टाइप। ए बी टाइप ब्लड ग्रुप। अगर सोचो किसी का somebody हैज नो एंटीजेंस, किसी के कोई एंटीजन ही नहीं है, somebody हैज नो एंटीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ओ टाइप। क्या हो जाएगा इसका? ओ टाइप ब्लड ग्रुप। ओ टाइप ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसका, ठीक है।
डन। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ तुम्हें। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसमें इम्यून स्टिमुलेटिंग पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? इम्यून स्टिमुलेटिंग पॉलीसेकेराइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। अगर मान लो किसी बंदे की बॉडी में एक टाइप ऑफ एंटीजेंस है और ये कहाँ अटैच होते हैं? दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए। अगर किसी के बी है उसको ब्लड ग्रुप बी। किसी में अगर एंटीजेंस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओ टाइप ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर टाइप ऑफ blood cell, that is called white blood cells. That is called white blood cells. Right? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट WCs। WCs माने वाइट ब्लड सेल्स, और हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स टेक्निकल नेम इज ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ल्यूकोसाइट्स। लिखो, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ल्यूकोसाइट्स। डन। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज लार्जर देन, ये आरबीसी से बड़े होते हैं। इट इज लार्जर देन आरबीसी। इनका क्या होता है? दे हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियाई, और वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियाई नहीं होता है। दे हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियाई। दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये भी कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में। ठीक है। अब क्या होता है? दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से देयरफॉर इट्स कलर इज, दे आर वाइट इन कलर, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इट्स कलर इज वाइट। ओके। देन white blood cells has a lifespan of, white blood cell का लाइफ स्पैन कितना होता है पता है? दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 12 डेज। और रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, लिखो 120 डेज। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाइट ब्लड भसड़ क्या मचाते हैं। मेन फंक्शन तो लिखो, देयर मेन फंक्शन टू अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर मेन फंक्शन इज टू अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स their main function is to attack the microorganisms which enter our body, लिखो, which enters our body and which enters our body। तो अगर मान लो कोई पैथोजन, कोई फॉरेन माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो वाइट ब्लड सेल क्या करेंगे? उन पे हमला ठोक देंगे और उन्हें पकड़ कर ठोक देंगे। देयरफॉर दे प्रोटेक्ट अस, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीज। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीज। ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में इनका कंपोजिशन क्या होता है? तो ध्यान से लिखो। ये मैं तुम्हें अभी कंपोजिशन बताता हूँ, फिर लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो होते हैं 30% क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स होते हैं। लिखो 30% आर लोकेटेड ल्यूकोसाइट्स, 60% आर न्यूट्रोफिल्स,
and the remaining 8% are monocytes. Remaining 8% are monocytes. इसको अंडरलाइन करो. 60% क्या होते हैं न्यूट्रोफिल्स, 30% क्या होते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड 8% क्या होते हैं मोनोसाइट्स, राइट. एंड जो रिमेनिंग 2% हैं, रिमेनिंग ल्यूकोसाइट्स को आर कॉल्ड रिमेनिंग ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, लिखो क्या होता है इजोमोफिल्स. एक तो ये इजोमोफिल्स, इजीमोफिल, सॉरी इजी, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट द राइट स्पेलिंग. ये है EOSIMOPHILS, इओजिमोफिल्स. और दूसरा होता है बैसोफिल्स. दूसरा क्या होता है बैसोफिल्स, BASOPHILS. तो ये दोनों रिमेनिंग 2% क्या है, ये है. बट अभी हमें इसके बारे में इनका क्या फंक्शन है कोई हमें आइडिया नहीं है. वी हैव नो आइडिया अबाउट देयर फंक्शन. ये लिख लो तुम. इट कैन बी आस्क्ड इन दी क्वेश्चन पेपर, इट कैन बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन. तो जो इजोमोफिल्स हैं और बैसोफिल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो क्लू. स्टिल दिस टॉपिक इज अंडर द रिसर्च. ठीक है. तो दिस इज हाउ द वाइट ब्लड सेल्स आर ग्रुप्ड, राइट. अब आगे चलते हैं, राइट. अच्छा, अब मैं तुम्हें एक नए सिस्टम से आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू. इसी के अंदर एक नया सेपरेट टॉपिक है. नहीं, ये हो गया, हमने राइट ब्लड सेल कर लिए, वाइट ब्लड सेल्स कर लिए. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर. ठीक है, डन. एक बार मैं रिवाइज कराऊँ आपको. वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स. दे आर लार्जर देन आरबीसी. ये रेड, इनका जो साइज होता है वो रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है. दे हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस एकदम डिफाइन होता है. दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो. इसके अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस नहीं होती है. हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है. इनका लाइफ स्पेन कितना है, 12 दिन का है. इनका मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये इमीडिएटली उस पर क्या कर देते हैं, हमला बोल देते हैं और उसको बर्फ़ में लगा देते हैं, यानी कि किल इट. ठीक है. देयरफॉर देयर मेन फंक्शन क्या हुआ, देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीज़. इनका मेन फंक्शन क्या है, हमारे को डिसीज़ से प्रोटेक्ट करना. तो हमारी बॉडी में इनकी क्या कंपोजिशन है, 30% ल्यूकोसाइट्स, 60% न्यूट्रोफिल्स, 8% मोनोसाइट्स. और जो रिमेनिंग 2% है वो क्या होता है, इजोमोफिल्स और बैसोफिल्स. इजोमोफिल्स और बैसोफिल्स के बारे में एट प्रेजेंट मेडिकल साइंस में ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि इनका फंक्शन क्या है. तो वी डोंट हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. ठीक है. नाउ आई एम रबिंग दिस and I will discuss about blood platelets. I will discuss about blood platelets. Blood platelets. ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले दे आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो. लिखो, ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड दे डोंट हैव न्यूक्लियाई, दे लैक न्यूक्लियाई. इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है. थर्ड लिखो, दे आर मच स्मॉलर देन
दे आर मच स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल से बहुत छोटे होते हैं। देन फोर्थ, दे आर टेक्निकली नोन एज, इनका क्या नाम है टेक्निकली, थ्रोम्बोसाइट्स, thrombocytes. Their technical name is thrombocytes. Their technical name is thrombocytes. इनको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। और इनका मेन फंक्शन क्या है, फिफ्थ, इट्स मेन फंक्शन, इनका मेन फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। They play an important part in the clotting of blood, right? They serve as a starting material, लिख लो properly, they serve as starting material for blood clotting, ठीक है, डन। अब ध्यान से देखो, blood platelets, they are also produced in bone marrow, they lack nuclei, their size is smaller than the red blood cells। red blood cells को हम क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, red blood cells are called erythrocytes, याद आया, एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, एरिथ्रोसाइट्स। उनसे इनका साइज क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का थोड़ा छोटा होता है। देयर टेक्निकल नेम इज थ्रोम्बोसाइट्स, इनका टेक्निकल नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दे सर्व एज स्टार्टअप मटेरियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज देयर मेन फंक्शन, राइट, डन, गुड। अब लिखो, now write it down, what are the main functions of blood, लिखो, what are the main functions of blood, what are the main functions of blood, blood का मेन फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 1 बताओगे, जल्दी से बताओ, functions of blood, let me have a glass of water then we'll start, wait a minute, तुम सोचो, अभी तक I have told you what is the main function of blood, okay, right, what are the main function of blood, as you know blood is a transport, the most important function is to transport here, right, so it is like a transport medium in our blood, right। जैसे इंडिया की लाइफलाइन किसे बोलते हैं, इंडियन रेलवेज को, राइट, द लाइफलाइन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियन रेलवेज। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की लाइफलाइन क्या है, ब्लड। रेल को हम लाइफलाइन क्यों बोलते हैं, रेल इज द बिगेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, both for the population, for us to transport from one place to another is a medium of transport, and it also one of the biggest mediums for the transport of raw materials. Similarly is the blood. Blood is the medium of transport in a body. लिखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस, लिखते चले जाओ मेरे साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। जो बॉडी में हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किसके से होते हैं, ब्लड की वजह से। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स।
ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स लिखो। फोर्थ, it is important for the maintenance of water balance. It is important for the maintenance of water balance. इसको अंडरलाइन करो, ये बात कम लोगों को पता है. It is important for the maintenance of water balance in human body. Fifth, और बताओ. It also maintains, ये भी बहुत important है. Point number 4, point number 5 are very important. It also maintains pH of body fluids. It also maintains pH of body fluids, right? And sixth is also very important. It is blood also maintains. It also maintains our body temperature. It also maintains our body temperature by the process of, लिखो उसको, by the process of, anybody you can tell me, तुमने पढ़ा होगा, by the process of thermoregulation, by the process of thermoregulation, लिखो, by the process of thermoregulation and heat dispersion, right? तो ये हमारे जो है 6 मेन ब्लड के मेन फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, जो आपको पता होने चाहिए. वो कौन से हैं? नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस. नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स. नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी. नंबर 6, मेंटेनेंस ऑफ pH लेवल ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स. Number 6, maintenance of our body temperature through the process of thermoregulation and heat dispersion. ये इसके 6 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके? ब्लड के. तो चलो अब हम आगे चलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट lymphatic system. Lymphatic system is nothing but an extension of circulatory system. But is an extension of circulatory system. लिखो lymphatic system. Lymphatic system लिखो. It is nothing. Lymphatic system is the extension of, जैसे मैंने आपको बताया, it is the extension of circulatory. It is the extension of circulatory system. It consists of a fluid. It consists of fluids. कौन सा फ्लूइड होता है? लिम्फ. इसको अंडरलाइन कर लो. कौन सा फ्लूइड होता है? लिम्फ होता है, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, राइट? एंड इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फ सिस्टम का, एक मिनट लिखो, वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर. इट हैज़ अ कैपिलरीज. इट आल्सो हैज़ कैपिलरीज. इसके इनकी कैपिलरीज भी होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स. क्या बोलते हैं इसको हम? लिम्फेटिक वेसल्स. एंड द स्ट्रक्चर्स, अब लिखो, एंड द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स. जो स्ट्रक्चर, इसको अंडरलाइन करो.
और जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स, राइट, डन। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में क्या समझा आपने? लिम्फेटिक सिस्टम इज नथिंग, it is an extension of circulatory system. It consists of a fluid called lymph. It has a capillaries which are known as lymphatic vessels, and the structures in lymphatic systems are called lymph nodes. ठीक है, अब आगे चलो, are called lymph nodes. अब तुम्हारे मन में ख्याल सवाल आना चाहिए, अगर तुम तो सवाल पूछते नहीं हो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये लिम्फ क्या बसड़ है, ये लिम्फ क्या है, ये लिम्फ क्या बसड़ है, राइट। तो उसके बारे में लिखो, व्हाट इज लिम्फ। देखो, लिम्फ इज अ वाटर फ्लूइड, लिम्फ क्या है, वाटर फ्लूइड है। इट इज अ वाटर फ्लूइड derived from the plasma. It is a water fluid derived from the plasma that was sieved out of blood. इतना बहुत है, I think that's enough. Leave the water fluid derived from the plasma. Okay? और ये कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन योर नेक, इन योर आर्मपिट्स, लिखो, एंड इन योर ग्राइन एरिया, एंड इन योर ग्राइन एरिया। ये तीन जगह लोकेटेड होता है। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्प्लिन, याद आ रहा है? स्प्लिन, मैंने एक वर्ड यूज किया था। तो स्प्लिन क्या होता है? It is located near the stomach. It is located near the stomach. It is a lymph. ये क्या है? एक lymph node है. It is a lymph node, and it is a place where red blood cells are destroyed. It is a place where red blood cells are destroyed. ठीक है, डन। इतना समझ में आ गया है ना? ओके, अब मैं तुम्हें आगे चलता हूँ, उसकी आगे की जर्नी करवाते हैं तुम्हें। क्या समझ में आ रहा है ना? लिम्फ क्या होता है? इट इज अ वाटर फ्लूइड derived from the plasma. It is located in neck, armpits and groin. Wait a minute. It is located in neck, armpits and groin area. Spleen is located near the stomach, and it is a lymph node, and its main function is to destroy the red blood cells. Okay? अब आगे चलते हैं। डन, लिखो, आवर बॉडी हैज टू, हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। आवर बॉडी हैज टू काइंड्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। आवर बॉडी हैज टू काइंड्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये कौन कौन से होते हैं? लिखो, नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? बी लिम्फोसाइट्स। और दूसरे कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। टी lymphocytes. So our body has two kinds of lymphocytes. One is called B lymphocytes and second is called T lymphocytes. And this topic is very important. जब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा
अगर तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो और तुम्हें आइडिया है तो तुम फ्लैट हो जाओगे, सर ने कितनी बढ़िया चीज़ हमें बताई है, ठीक है, जो आजकल चल रही है इम्यूनिटी से रिलेटेड। ओके, तुम्हारी बॉडी में कितने तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं? 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो जो बी लिम्फोसाइट होता है ये स्टिमुलेट होता है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय बैक्टीरिया। ये किससे स्टिमुलेट होता है? बैक्टीरिया से या वायरस से, राइट। और ये क्या प्रोड्यूस करता है फिर? एंटी बॉडीज। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस करता है? फ्रॉम द प्लाज्मा सेल्स, राइट। दिस एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, they destroy the microorganisms harmful for our body by the chemical reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूँ सिंपल फॉर्म में तुम्हें। दिस एंटीबॉडीज destroy the microorganisms harmful for our body by the chemical reaction। chemical reaction मतलब क्या होता है कि they chemically react with them, उनके साथ क्या होता है? केमिकली रिएक्ट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइन करो, एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड इट प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग protection to our body, लिखो, फटाफट लिखो। आई एम टेलिंग यू, हमारी बॉडी में कितने तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं? 2 तरह के, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं कब स्टिमुलेट होते हैं, कब ट्रिगर होते हैं हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर जाता है विच इज़ हार्मफुल टू अस। तो इमीडिएटली ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनते हैं और ये क्या करते हैं? सीधा उन जहाँ पर जिस बॉडी के जिस पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके साथ ये क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकली रिएक्शन करते हैं। केमिकली लिखा है ना तुमने, दे रिएक्ट by the chemical reaction, that is they chemically react with them। ये उनके साथ केमिकली रिएक्ट करके उनको वहीं पे जो है उनको बर्फ़ में लगा देते हैं, भसड़ मचा देते हैं उनकी, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बॉडीज होती हैं? एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये बहुत बड़ा टॉपिक मैंने तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझाया। एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं इसको, ठीक है, विच प्रोवाइड्स and which gives lifelong protection to our body against those particular diseases। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स की। ये टी लिम्फोसाइट्स कब स्टिमुलेट होते हैं? आई राइट इट डाउन हियर। ये हो गया ना, समझ में आ गया? डन। बी लिम्फोसाइट्स हो गए। अब हम किसकी बात करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स की। अब किसकी बात करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स। अब ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये कब स्टिमुलेट होते हैं? दे स्टिमुलेट बाय द फंजाई और प्रोटोजोआ। ये किससे स्टिमुलेट होते हैं? फंजाई एंड प्रोटोजोआ। और ये क्या सिक्रिएट करते हैं? दे सिक्रिएट एंटीजेंस। ये क्या सिक्रिएट करते हैं? एंटीजन सिक्रिएट करते हैं।
ये क्या करते हैं फाइनली, जब एंटी सीक्रेट करते हैं तो दे इंटरैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they interact with microorganisms and they interact with microorganism cells and destroy their cells or destroy themselves। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। तो टी लिम्फोसाइट कब स्टिमुलेट होते हैं, बाय द फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजेंस। ये कैसे मारते हैं, अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो ये क्या करेंगे, ये उस जगह पहुंच जाएंगे, उसके साथ ये बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे। डायलॉग करके इन्हें पता चल जाएगा इसके कितने 10 सेल हैं, तो इन 10 सेलों पे हमला करके उन्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट उनके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि उनके साथ घुस के मिल के फिर ख़त्म करते हैं उनको। ये क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मुआयना करते हैं कि 10 बंदे हैं, इनके 10 बंदों को उड़ा देंगे। ये डिफरेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डन। आई होप you have enjoyed with me in understanding the circulatory system, and here I complete your circulatory system and I kindly request you, जो मैं बार बार बोलता हूँ, पहले आप अपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ा आपने, इसको पढ़ने के बाद, इनको फेयर करने के बाद फिर आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। योर टॉपिक इज ओवर, इट विल टेक केयर ऑफ योर प्रीलिम्स। Wish you good luck. We will come back. Okay? Do well in your study.